Hello everyone, I welcome you all to this course on English grammar for competitive exams. I'm Divijot Kaur, research scholar at Malviya National Institute of Technology, Jaipur. In today's video, we are going to learn about closed test and sentence rearrangement. So let's first understand the basics of a closed test. Closed test is an amalgamation of comprehension and fill in the blanks, यानी ये दोनों का मिक्सचर होता है. जैसे कि हम कॉम्प्रीहेंशन स्कूल में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी पढ़ते आ रहे हैं, तो क्लोज टेस्ट इन दोनों का एक मिक्सचर है. इट इज एन एक्टिविटी दैट कंप्राइजेस बोथ a comprehension a comprehension or a passage is given in the question which comprises blanks और कैंडिडेट्स को अप्रोप्रिएट वर्ड्स चूज करके ब्लैंक्स को फिल करना है. There are two major patterns on which a closed test is based. First is the basic fill in the blanks pattern and second is replacing the words, यानी कि या तो आपको ब्लैंक्स को फिल करने के लिए दिया जाएगा या फिर आपको पूरा पैसेज दिया जाएगा, आपको वर्ड्स दिए जाएंगे और आपको हाईलाइटेड वर्ड्स को रिप्लेस करना है उनके करेक्ट फॉर्म से. तो अभी एक बेसिक फिल इन द ब्लैंक का फॉर्मेट देखते हैं. ये कुछ इस तरह का होता है जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक पैसेज दिया गया है और यहाँ पर ब्लैंक्स है विच आर लेबल्ड एज ए एंड बी विच यू हैव टू फिल. The origin of the caste system in India is dashed to the functional division of labor. So you have to fill in the correct answer. The correct answer here is attributed. The origin of the caste system in India is attributed to the functional division of labor. The population was divided into classes on the basis of functions or occupations of particular families and groups. However, in the course of time, these divisions between various societies, various sections of the society became very dash. It became, the answer is rigid. तो ये एक बेसिक फिल इन द ब्लैंक फॉर्मेट है. अब आपको इसे सॉल्व करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है. अगर आप कभी भी कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करते हैं एग्जाम्स में या आप क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी. यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स. तभी आप फिल इन द ब्लैंक में करेक्ट वर्ड यूज कर पाएंगे और आप पैसेज का मीनिंग समझ पाएंगे. तो आई वुड सजेस्ट यू टू वर्क ऑन योर वोकैबुलरी फर्स्ट. सेकेंड, अगर आप वर्ड का मीनिंग समझ नहीं पा रहे हैं और आप कंफ्यूज्ड है, आपको इन 5 ऑप्शंस में से कंफ्यूजन है कि शायद ये हो सकता है या शायद वो हो सकता है, एंड यू कंफ्यूज बिटवीन 2 to 3 ऑप्शंस, तो आप सेंटेंस में उस वर्ड को रख कर देखिए एंड रीड इट आउट. तो आपको समझ आएगा कि व्हेन यू पुट द वर्ड इन द सेंटेंस एंड रीड इट कि वो करेक्ट साउंड कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो समटाइम्स आप सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को समझकर भी वर्ड को यूज करते हैं even if you're not very sure of its literal meaning. This is the second pattern, that is replacing the words. यहाँ पर आपको वर्ड दिया गया है, आपको उसको करेक्ट फॉर्म से रिप्लेस करना है. सो अब फॉर्म कैसे समझेंगे. आप पूरे पैसेज को पढ़ेंगे और उसका फॉर्म, किस फॉर्म में वो पैसेज चल रहा है वो समझने की कोशिश करेंगे. जो was very unhappy with her standard of living. जो was, इसका मतलब हम past की बात कर रहे हैं. Her dad went bankrupt a few years ago and hence her family was poor. Again, this is past tense. All her clothes were shabby and old and they looked like they would tear any moment. So that we are talking about past tense, तो look का past tense होगा looked. So the answer to blank number 1 is looked. She dashed the girls. She envied the girls who wore pretty frocks to school. क्योंकि हमारा पूरा पैसेज पास्ट में चल रहा है, इसीलिए the past form of envy would be envied.
She envied the girls who wore pretty frocks to school. They would also bring tasty snacks to eat during the break, while she always had to do with plain bread and butter. तो हमने पूरे पैसेज का फॉर्म समझा, तो हमें इजीली करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड समझ आ गए. So there are some tricks to solve the cloze test which you must keep in mind. अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके लिए क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करना इजी हो जाएगा. फर्स्ट इज ओवरव्यू ऑफ द पैसेज. आप कभी भी स्टार्ट ब्लैंक से ना करें. पहले पैसेज को पूरा पढ़िए ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए एंड यू गेट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज. आपको समझ आएगा कि किस मुद्दे पर बात की जा रही है, जो जानना आपके लिए जरूरी है ताकि आप कॉन्टेक्स्ट समझ पाए. जैसे जैसे आप कॉन्टेक्स्ट समझेंगे यू विल बी एबल टू लिंक द सेंटेंसेस और आपको समझ आएगा कि क्या पहले आना चाहिए और क्या बाद में. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दिव्या इज अ गुड गर्ल, शी इज अ सिंसियर स्टूडेंट. तो आप समझ रहे हैं कि शी किसके बारे में बात कर रहे हैं हम. व्हाट डज whom does she refer to? It refers to दिव्या because मैंने पहले नाम बता दिया है दिव्या का एंड नाउ आई कैन यूज प्रोनाउंस. अगर मैं शी पहले बोल दूं और नाम आपको बाद में बताऊं तो आपको अटपटा लगेगा कि ये सेंटेंस का ऑर्डर कुछ गड़बड़ है. तो आप कॉन्टेक्स्ट समझिए, गो थ्रू द पैसेज और फिर आपको समझ आएगा कि हाउ द सेंटेंस आर लिंकिंग टू ईच अदर एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर. तो आप एक सीक्वेंस बना पाएंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बना पाएंगे सेंटेंसेस का एंड यू विल अंडरस्टैंड द टोन ऑफ द पैसेज. जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल में पास्ट टेंस की टोन को समझा और इजीली हमने करेक्ट फॉर्म फिट कर दिया ब्लैंक्स में. And as you understand the context, the linkage, the tone, you eliminate the wrong options. एक के बाद एक eliminate करते जाइए wrong options को and then you arrive to the final correct answer. Let us have a look at some sample questions for cloze test. So as we discussed, we get an overview of the passage first. Earth, our home, is the third planet from the sun. It's the only dash known to have an atmosphere containing free oxygen, oceans of water on its surface, and of course, life. The fifth largest planet of the solar system is the Earth. It is smaller dash the four gas giants Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, but larger than the three other rocky planets Mercury, Mars, and Venus. Earth has a diameter of roughly 8,000 miles and is dash because gravity pulls matter into a ball. But it is not perfectly round. Earth is really an oblate spheroid. तो अब हमें इसका ओवरव्यू समझ आ गया कि here we are talking about solar system, basically the planets with special reference to the Earth. हम प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं और हम अर्थ को दूसरे प्लैनेट से कंपेयर करके उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज द ओवरव्यू एंड कॉन्टेक्स्ट. तो हमें मुद्दा समझ आ गया कि इस पैसेज में किस मुद्दे पे बात हो रही है. सो नाउ वी आर एक्वेंटेड टू द पैसेज. हमें उसकी टोन समझ में आ गई है, हमें उसका मुद्दा समझ में आ गए हैं, हमें सीक्वेंस समझ में आ गया है कि हम वन बाय वन कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं. तो अब हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस. So first, our Earth, our home, is the third planet from the sun. Only dash known to have an atmosphere. So Earth is the only what? Of course, it's a planet. It's the only planet known to have an atmosphere containing free oxygen, oceans of water on its surface, and of course, life. The fifth largest planet of the solar system is the Earth. It is smaller dash the four gas giants. It is smaller for, it is smaller than, it is smaller than, it is smaller there, or smaller on. It is smaller than the four gas giants, but larger than the three other rocky planets Mercury, Mars, and Venus. Earth has a diameter of roughly 8,000 meters
and is dash because gravity pulls matter into a ball. So Earth has a diameter of roughly 8,000 meter and is oval, round, square, uneven, disrupted. Of course, round because gravity pulls matter into a ball. So when you understand the context, तो आपके लिए पैसेज में fill in the blanks करना ज़्यादा easy हो जाता है क्योंकि आप समझ जाते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और what comes before and after as we discussed कि word से पहले क्या आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है उसके according आप context समझ के correct word को fit in कर सकते हैं. Now moving on to sentence rearrangement. As the word suggests, sentence rearrangement refers to rearranging a bunch of lines which are presented in a jumbled manner in the question. हमें sentences दे दिए जाएंगे but वो jumbled manner में होंगे, उनका sequence correct नहीं होगा और हमें उन sentence को correct chronological sequence में put करना है. इसे हम parajumbles या sentence rearrangement कहते हैं. में चार तरह के types. There are 4 types of parajumbles basically. A basic type, static last statement type, static first statement type and static first and last type. अब हम एक करके समझते हैं इन्हें. But to begin with, you should understand the tips to solve sentence rearrangement. अब देखिए ये जो टिप्स हम बात कर चुके हैं क्लोज टेस्ट के बारे में वो लगभग सेंटेंस रीअरेंजमेंट पर भी अप्लाई होते हैं. दैट फर्स्ट यू शुड आइडेंटिफाई द सेंट्रल आइडिया. हम किस बारे में बात कर रहे हैं. यू डिटरमाइन द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. यू लुक फॉर प्रोनाउंस. जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझाया कि दिव्या इज अ गुड गर्ल, शी इज अ सिंसियर स्टूडेंट. तो हम नेम्स का यूज पहले करते हैं और प्रोनाउंस का बाद में, क्योंकि पहले हम किसी भी चीज को उसके नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद में हम उसे प्रोनाउंस से रेफर करते हैं. सो यू लुक फॉर प्रोनाउंस एंड चेक फुल नेम्स. तो आपको बेसिकली एक सेंट्रल आइडिया देखना है और आपको अंदाजा लगाना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमें पैसेज में पहले मिलनी चाहिए और कौन सी बाद में. तो आप जब सीक्वेंस समझ लेंगे तो आप पैराजम्बल सॉल्व कर पाएंगे. फर्स्ट इज द बेसिक फॉर्मेट. इसमें हमें 4 ऑप्शंस है. वी जस्ट हैव टू अरेंज इट chronologically. Of showers washed out, the sudden spell, the suspended particles from the air. So the correct form here would be the sudden spell of showers washed out the suspended particles from the air. So now it forms a meaningful sentence. Moving on to static first statement. इसमें आपको फर्स्ट स्टेटमेंट फिक्स रहती है, दैट विल नॉट चेंज, एंड बाद की स्टेटमेंट्स को आपको फॉलो अप करना है. यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज रहेगी, वो आपको पहले से ही दी गई है दैट दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, और बाकी स्टेटमेंट्स को आपको अरेंज करना है. फॉर एग्जाम्पल, आवर बॉडी टेक्स इन मेनी टॉक्सिन्स फ्रॉम. So the correct order here would be the atmosphere and the food. कहाँ से हमारी बॉडी टॉक्सिन्स लेती है? The atmosphere and the food we eat, and we must have a process for purging these impurities. तो आपको पूरा सेंटेंस बनाकर चेक करना है if it makes a meaningful structure. Now the static last statement format. इसमें आपको लास्ट स्टेटमेंट फिक्स दी गई है दैट दिस इज द लास्ट स्टेटमेंट, और आपको स्टार्टिंग की सारी स्टेटमेंट्स को अरेंज करना है. नाउ दिस वन इज अ सिंपल एंड इजी वन बिकॉज यहाँ पे आपको नंबर 1 एंड नंबर 2 दिख रहा है, सो यू अंडरस्टैंड कि कौन सा स्टेटमेंट पहले आएगा और कौन सा बाद में. सो द करेक्ट ऑर्डर गोज, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स they have addressed is number 1 production of needle and number 2 thread like diamond crystals. तो लास्ट टाइप है वो है स्टार्टिंग फर्स्ट एंड लास्ट स्टेटमेंट टाइप.
यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट दोनों स्टैटिक रहती हैं और बीच की सारी स्टेटमेंट्स को हम शफल करेंगे, यानी कि आपको फर्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट दी गई है तो आपका टास्क रिलेटिवली इजी हो जाता है। So the correct order here is Rani is a trained Bharatanatyam dancer. A talent hunt show is looking for classical dancers like Rani. Rani fills the form to the dance show. Rani is called for auditions. Rani gets selected. So you see how the sequence is following. कि पहले हम रानी को इंट्रोड्यूस करते हैं, हु इज रानी, फिर वो टैलेंट शो के लिए हम बताते हैं कि देयर इज अ टैलेंट शो लुकिंग फॉर डांसर्स लाइक रानी, देन शी फिल्स द फॉर्म, गोज फॉर ऑडिशंस एंड गेट्स सिलेक्टेड। तो इस तरह से जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो थिंग्स विल फॉलो अप और आप बहुत ही इजीली सेंटेंसेस को एक सीक्वेंस में फिट कर पाएंगे। So in today's video, we discussed about the basics of clothes test, the patterns of clothes test, some tricks and tips to solve clothes test, and to solve sentence rearrangement. I hope I have been able to share some important tricks and tips to solve clothes test and sentence rearrangement. That is all for today's lecture. Thank you and see you in the next lecture.